Hello everyone, I am Karthika and today in this session of mine I'll be discussing with you people your geography textbook, class 9's geography textbook, which is named as Contemporary India Part First, and from that textbook of yours I'm gonna discuss with you people the first chapter of your textbook, which is India, Size and Location. So we people are going to discuss about our country's size as well as we people are going to discuss the location of our country. So as per this geography chapter of yours and the geography book, the book is not so vast, the chapters are not so vast. तो जो हमारा chapters है वो कम से कम explanation भी मांगता है geography के अंदर, because everything again here is factual based. So therefore आपको कम से कम जो है टाइम लगेगा इसको कवर करने में, प्लस ये इजी भी है, सब कुछ आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है, बिकॉज अगेन ये फैक्ट्स हैं, सो यू हैव टू लर्न. इट्स नथिंग एक्सप्लेनेटिव जो आप एक्सप्लेन करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यू नीड टू नो द फैक्चुअल थिंग्स ऑफ द चैप्टर, ओनली देन you can score well in geography. So now I'm just gonna start with the chapter. As you people can see on the screen, I've written the name of the chapter. Now I'll be discussing with you about our country. In a brief explanation in the chapter, it is given that India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress. So when we people talk about India, it is one of the ancient civilizations. एक हल्का सा explanation आप लोगों को दिया हुआ है इंडिया के बारे में, what we people need to know about our country. So it's in a very short explanation आपको आपकी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है शुरुआत में. तो आप लोग देख सकते हैं अपने बुक के अंदर, तो उसमें क्लियरली बोला गया कि इंडिया जो है वो एक एंशंट सिविलाइजेशन, इज वन ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन. नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है इसने काफ़ी हद तक जो है वो प्रोग्रेस अचीव किया है. व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री जो है उसने अचीव किया है इस ग्रोथ को. नेक्स्ट वी पीपल सी दैट इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, industry, technology and overall economic development. So if we people talk about India, तो इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो जो जो फील्ड यहाँ पर मेंशन की गई है वो फील्ड मेंशन की गई है इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के रास्ते पे जो है वो चल रही है. सो नेक्स्ट में पीपल सी कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल. सो दिस वाज अबाउट आवर कंट्री व्हिच इज गिवन इन द बुक. नेक्स्ट देयर इज a topic as location. So I'm going to start with that topic which is named as location. I'm just going to write it here on the screen for you people. So हम जो चीज़ अभी डिस्कस करने वाले हैं that is the location of our country, everything which concerns the location of our country, that is what we people are going to discuss in this session. So I haven't written anything regarding the introductory para of your book. You people can just see that, you people can read it from your book. We people are going to discuss the main thing which is India की location के बारे में, India के size के बारे में. So this chapter is one of the very brief chapters in your syllabus. So let's start with it. So अगर हम बात करें इंडिया की, so we people know that India is a vast country. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है. लैंड मास के बेसिस पे देखूँ तो हम लोग काफ़ी बड़ी कंट्री है. मैं नहीं कह रही कि हम लोग ही सिर्फ बहुत बड़ी कंट्री हैं, बट हम लोग भी बहुत बड़ी कंट्री हैं. लैंड मास के बेसिस पे हम देख रहे हैं, जोग्राफिकल एरिया के बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं. और So India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between. Now, जब हम लोग बात करते हैं अपनी कंट्री के लोकेशन की तो सबसे पहले जो चीज़ आता है हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की यहाँ पर. सो दे आर सेइंग कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम बात करते हैं तो जो मेन लैंड हमारी कंट्री का एक्सटेंड करता है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है. पहली बात तो हमारी जो लोकेशन है उसको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में बांटा गया है. तो जब हम बात करेंगे, हम अपनी लोकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम बताते हैं अपनी कंट्री का लोकेशन. सो वी पीपल डिस्कस इट इन द टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. ओके, सो द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8
degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north. ये तो हमारे हो गए लैटिट्यूड्स. आप लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, व्हाट दे एग्जैक्टली आर. सो यू पीपल मस्ट हैव एन आइडिया कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. सो इट इज दीज आर द लाइन्स जो हमारे ग्लोब के ऊपर होती हैं, ताकि हम लोग जो है लोकेशन सेट कर पाए कंट्रीज की. तो जो लाइन्स होती हैं वो बांटती हैं पूरे के पूरे ही ग्लोब को. सो if we people now again if we people talk about जो लैंड है हमारा, जब हम लैटिट्यूड्स के अंदर बात करते हैं तो लैटिट्यूड्स कौन से हैं हमारे? लैटिट्यूड्स है हमारे 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है हमारे? दे आर 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो हम लोगों का लोकेशन है वो. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल location of your country, so this is how you people should learn it, and this is a very important one marker question, so please you people need to mark it in your book. The next we people discuss about, when you people are discussing about the location of our country, is कि जो tropic of cancer है वो divide करता है हमारी country को in almost 2 equal parts. So there is a line, if you people see the map of our country, there is a line that is dividing our country in almost 2 equal parts. So that line is known as the Tropic of Cancer. और अगर Tropic of Cancer का मैं location दूँ तो Tropic of Cancer का क्या location है? That is 23 degrees 30 minute north. So this is the location of the Tropic of Cancer, and it is something that divides our country in 2 equal parts. Next, if we people talk about, to the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands. So when we people talk about the south of our country, चाहे हम साउथ ईस्ट की बात करें चाहे हम साउथ वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे जो हमारी कंट्री के हिस्से लाई करते हैं वो कौन से हैं? The Andaman and Nicobar Islands, the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. So these are the things जो ये हमारे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में लाई करती हैं. So now we people have discussed about the location. मैंने आपको एक verbal जो है location के ऊपर whatever in the topic of your book it is given, जो भी इसमें दे रखा है वो मैंने एक verbal form में आप लोगों के साथ discuss कर लिया है. Now I will be giving you people facts regarding it. Okay. So as we people talk about the location of our country, first thing is that our country is a vast country. Next is lying entirely in the northern hemisphere. So where does India lie? It lies, India is the India का अगर हम एरिया डिस्कस करें तो वो उसका जो पूरा एरिया कहाँ लाई करता है? It lies in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है हमारा पूरा एरिया रहता है. और उसके बाद अगर हम देखें इसकी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो इसकी लोकेशन, अगर हम उसके अंदर बांटना चाहें तो किस तरीके से बांटेंगे हम इसे? We people are going to give out its degrees. First is हम लोगों ने बात की है पहले, जो लैंड एक्सटेंड करता है वो एक्सटेंड करता है कहाँ पे? बिटवीन लैटिट्यूड्स. तो जो पहली हम लोग यहाँ पर लोकेशन देंगे वो हम देंगे लैटिट्यूड्स की, जो हमारे 2 लैटिट्यूड्स हैं. लैटिट्यूड के अगर बेसिस पे देखें तो क्या है हमारा यहाँ पे लोकेशन? दैट इज 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ एंड नेक्स्ट इज 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. सो दिस इज आवर लैटिट्यूडनल लोकेशन. एज आई टोल्ड यू कि जो ग्लोब है वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के अंदर बटा हुआ है. इफ यू पीपल सी द होल ग्लोब, यू पीपल कैन सी दैट देयर आर लाइंस ऑन द ग्लोब. हम लोगों ने ग्लोब को बांटा हुआ है ताकि हम जो है कंट्रीज का जो लोकेशन है हम उसे तय कर पाए. सो दैट इज वाई जो पूरा ग्लोब है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के अंदर बटा हुआ है. नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल
next is the longitude location of our country. So when we people talk about the longitudes, so longitudes क्या है हमारे, longitudes है हमारे 68 degrees 7 minute east and it is 97 degrees 25 minutes east. So this is the longitudinal location. So I've given you both the location, latitudes दे दिए हैं मैंने, फिर longitudes मैंने दे दिए हैं. Next we people see ये again ये सारा जो है जितने भी हमने यहाँ पे points mark किए, ये सारे 1 mark का questions आपसे पूछा जा सकते हैं. Next we people see that हमारी country को जो line almost 2 equal halves में बांटती है, almost 2 equal parts में बांटती है, वो कौन सी है? That is the Tropic of Cancer. So the Tropic of Cancer. Now Tropic of Cancer, which is 23 degrees 30 minutes north. So this is the location of the Tropic of Cancer. So 23 degrees 30 minute north, ये क्या करता है? ये divide करता है, divides the country in almost 2 equal parts. So हमारी कंट्री को 2 हिस्सों के अंदर बांट देता है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विद लोकेशन. आई हैव गिवन यू दिस फैक्ट. सो दिस इज द होल 1 मार्क जो क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये पूरा जो लोकेशन वाला हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया, टोटली फैक्चुअल बेस्ड है. इट हैज नथिंग टू एक्सप्लेन यू पीपल until and unless your people have no basic knowledge of the hemisphere, the longitudes, latitudes. अगर आपको कुछ ज्योग्राफी के इन टर्म्स की भी जो है वो नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के साथ थोड़ा मुश्किल ये हो सकता है. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन के अंदर ही हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेनलैंड है वहां पर कौन कौन सी जगहें पड़ती हैं. सो व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एरिया है हमारे कंट्री के, वहां पे क्या लाई करता है? लाई दी पहली चीज जो लाई करती है वो क्या करती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड नेक्स्ट क्या चीज है? लक्षद्वीप आइलैंड. I hope you people have heard about these islands. I hope you people have heard about these islands, so it will be easy for you people to understand this. So next is the Lakshadweep island. कहाँ पे lie करता है ये Lakshadweep island? in Bay of Bengal. You people, while we people are discussing it, you people please open the map of the country. हमारी जो country का map है, अगर आप वो देखते हैं, it is given on page number 3. I'm just gonna show you people. I'm sorry. Here is what I am writing. You people can रोक सकते हैं आप वीडियो को और आप लोग देख सकते हैं. So as I was discussing कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड की, लक्षद्वीप की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. सो क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल में. मैं पहले पॉइंट यहाँ पे पूरा कर देती हूँ. एंड अरेबियन सी. सो when you people talk about the Andaman Nicobar Islands, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं? वो लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में. इफ यू पीपल सी द बुक ऑन पेज नंबर 3, आपका इंडिया का मैप दिया हुआ, वहां पे देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में हैं और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के अंदर है.
So you people need to see it in your book. Here I'm just showing you people the book, the map. I'll just hang on for a minute. I'll just zoom out the screen so that पूरा map जो है वो आप लोगों को दिख जाए. I'm just gonna zoom out. So you people can see, यहाँ पर ये पूरा मैप है हमारा कंट्री का. So you people can see कि जो बे ऑफ बंगाल है, here you people can see बे ऑफ बंगाल, it's written बे ऑफ बंगाल. So बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा बे ऑफ बंगाल में. नेक्स्ट यू पीपल कैन सी, आई जस्ट पुट अ स्टार, ये जो बे ऑफ बंगाल है उसमें मैं स्टार लगाती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी है. सो अब मे बी आपको थोड़ा और क्लियरली दिखे. यस, अब आपको और क्लियरली दिखेगा. तो बे ऑफ बंगाल जहाँ पर है वहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नेक्स्ट भी पीपल कैन सी कि जहाँ अरेबियन सी है, अरेबियन सी में कौन सा वाला है, लक्षद्वीप आइलैंड्स. व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड्स, सो दैट इज इन द अरेबियन सी एंड इट इज one marker important question. All the things that I have been discussing with you people is one marker important questions. Okay, so we will have discussed this. And yes, जो मैं आप लोगों के साथ longitudinal और latitudinal geographical location की बात कर रही थी अपनी country के, so we people were discussing about that. So we people discussed कि जो latitudes है हमारी country के वो कौन से हैं. ये है हमारी country का latitude. The line which is coming from the north to the south, it is the लैटिट्यूड. सो क्या लैटिट्यूड था, हमने क्या डिस्कस किया था. लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ. नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूड. तो जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है, वो है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स जो है ईस्ट, उसके बाद 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. दिस इज द लॉन्गिट्यूड्स. तो ये लॉन्गिट्यूड्स है और ये लैटिट्यूडनल डिग्री है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. आपके बुक के अंदर दिया हुआ है. प्लीज व्हेन वी पीपल आर डिस्कसिंग इट, डू सी द मैप सो दैट यू पीपल गेट अ रेफरेंस एंड यू पीपल आर नॉट इन a state of confusion. So this is your इंडिया का मैप जो है हमने डिस्कस कर लिया. जब हम इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लोकेशन वाला जो पूरा पार्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. आई हैव शोन यू पीपल द मैप. So these are the pointers which I am giving you regarding the topic. So you people can mark it. I will just, yes. So next we people are going to discuss, I'm just gonna come back to this topic when I'll be wrapping up things with you in this session. मैं तभी दोबारा से डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ. एक तरीके से आपको जो है वो मैं पूरा का पूरा कंक्लूजन या फिर मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवाइज कराती हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो कि हमने क्या क्या पढ़ा है. सो वो आई एम गोना डू इन द एंड ऑफ द वीडियो. सो दिस इज द होल टॉपिक रिलेटेड टू द लोकेशन. उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन या एनीथिंग रिगार्डिंग लोकेशन जो है वो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स के थ्रू आपको यहाँ पे दे दिया. आप अपनी बुक के अंदर मार्क कर सकते हैं या फिर आप वीडियो रोक कर पॉज कर आप इसको लिख सकते हैं एज पर योर विश. ओके, so I'm gonna change the pace because now we people are going to discuss another topic, the next topic which is size. So हम size discuss करने वाले हैं. So the next topic says size. अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगी साइज रिलेटेड. साइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी कंट्री के. आई विल जस्ट अगेन जूम इन सो दैट यू पीपल कैन सी. आई होप यू पीपल कैन सी. The screen is a bit blur but now it is fine. So we people are going to see. जब हम साइज की बात करते हैं अपनी कंट्री के तो जो लैंड मास है इंडिया का उसका कितना एरिया है. इट हैज एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometers. So this is the land mass area of India. Pretty vast country. Even I was also thinking the same thing when I read this. मैंने भी ये चीज पढ़ी थी तो मुझे भी लगा था कि काफी बड़ी कंट्री है, काफी बड़ा लैंड मास है हमारी कंट्री का. So
इंडिया की जो टोटल एरिया है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल, व्हेन पीपल टॉक अबाउट द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जब हम टोटल एरिया की बात करें, वर्ल्ड के टोटल एरिया की बात करें, तो इंडिया का कितना हिस्सा बनता है? इंडिया का हिस्सा बनता है 2.4% of the total geographical area of the world. I know it can be a bit confusing, but again I would like to say कि आप इसको facts को समझिए। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया का आप मैप देखेंगे तो इंडिया का जो अब साइज है हम उसका डिस्कशन करें। पहले हमने देखा कि इंडिया एज अ कंट्री पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज व्हाट वी पीपल डिस्कस। नाउ वी पीपल आर डिस्कसिंग कि इंडिया का साइज कितना है। इफ यू टॉक अबाउट एज पर द वर्ल्ड, तो उस वर्ल्ड के अंदर इंडिया का कितना हिस्सा है। सो हम इंडिया का लैंड मास जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इंडिया का जो साइज है वो हम लोग डिस्कस करें। सो इंडिया का जो लैंड मास है उसका एरिया कितना है? लैंड मास, if you people talk about the land mass of India, has an area of 3.28 मिलियन। देख रहे हैं हम कितना बड़ा हिस्सा है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इतना बड़ा हिस्सा है। प्लीज स्क्वायर किलोमीटर मैंने यहाँ पे अगर आप लोगों को शॉर्ट में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे भी शॉर्ट में लिख के आएंगे। प्लीज स्क्वायर किलोमीटर पूरा लिख के आइए वहां पे। सो ये तो है इंडिया का लैंड मास अगर हम लोग बात करें। लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया अगर हम इंडिया की बात करें वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना है? तो है वो 2.4% of the total geographical area in the world. So if we talk about India's total geographical area, कहाँ पे हम टोटल जोग्राफिकल एरिया देख रहे हैं? ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो कितना है इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया? इट इज अबाउट 2.4, I'm just going to write it again, I'm sorry, it is 2.4%। ठीक है, तो 2.4% है, ये मैंने कैंसिल आउट किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसकी जगह पे 2.4% जो है वो अलग से दोबारा से लिख दिया है। सो इफ यू पीपल सी इन द फिगर जो आपके बुक के अंदर पहली फिगर दी हुई है विच इज 1.2 में, सॉरी जो सेकेंड वाली फिगर दी हुई है 1.2, आप देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 2। सो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? रशिया। उसके बाद कौन सी है? कनाडा। उसके बाद है यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर है इंडिया। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। सो यू पीपल कैन सी, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑन द इन द बुक, आई एम जस्ट गोना शो यू। आप लोग बुक देख सकते हैं, बुक के अंदर ये वाला जो स्टैट्स है इसको आप देख सकते हैं। सो दिस इज द डेमोग्राफिक यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2009-2010। सो इंडिया हियर, यहाँ पे 7 लार्जेस्ट जो कंट्रीज हैं, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज उनका यहाँ पर वो दे रखा है। तो हम यहाँ पहले देखते हैं, जो सबसे पहले कंट्री आती है वो कौन सी आती है? रशिया। दूसरी कौन सी है? कनाडा। उसके बाद है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है इंडिया। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सो आई एम जस्ट गोना गिव इट इन राइटिंग टू यू पीपल। अगेन जितनी भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रही हूँ वो सारे 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरी फैक्ट दैट आई एम स्टेटिंग हियर इज योर पोटेंशियल 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, so what is India? India is the 7th largest country of the world. India is the 7th
largest country. India is the 7th largest country of the world. तो वर्ल्ड की 7th largest जो country है वो है इंडिया. So you people can take a note of these things, or else you people can mark it in your book as per your wish. Moving on forward with the topic, इंडिया का जो लैंड है उसकी बाउंड्री, अगर हम बात करें इंडिया की लैंड बाउंड्री की, सो इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15.200 किलोमीटर्स. तो हम जब बात करते हैं इंडिया का कितना है, तो इंडिया का कितना है 15,200 किलोमीटर. जो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया का बाउंड्री की, तो इंडिया की बाउंड्री कितनी बड़ी है, इंडिया की बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स बड़ी, 15,200 किलोमीटर बड़ी जो है लैंड बाउंड्री है इंडिया की. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इज कितनी है बड़ी. अगर हम लोग ये कोस्टल लाइन भी इंडिया की हम लोग इंक्लूड करते हैं तो कितनी बड़ी हो जाती है यहाँ पे, इट इज 7,516.6 किलोमीटर्स. नेक्स्ट इफ पीपल सी कि जो हमारा लेंथ है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे कोस्टल लाइन को भी इंक्लूड कर देते तो कितना है, इट इज 7,516.6 kilometers. So we people are going to write this also, because this is again something which is one of the very important facts. So India, it has a land boundary of about, India's land boundary. So if people talk about India's land boundary, तो क्या है इंडिया की land boundary, it is 15,200 kilometers. Okay. और अगर हम टोटल लेंथ ले, टोटल लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल लेंथ में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ऑफ द कोस्टल लाइन, हम कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं, ऑफ द कोस्टल लाइन, जब हम बात करें कोस्टल लाइन की ऑफ द मेन लैंड, कोस्टल लाइन की जब हम बात करते हैं, अब हम कोस्टल लाइन देखते हैं कितनी लंबी है ऑफ द मेन लैंड, और क्या क्या इंक्लूड किया हमने इस मेन लैंड के अंदर, इंक्लूडिंग the Andaman and Nicobar, Andaman and Nicobar and लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भी हम बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप तो कितनी हो जाती है फिर बड़ी, इट इज 7,516.6 किलोमीटर्स. फिर ये इतनी बड़ी होती है. जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कोस्टल लाइन की बात करते हैं ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो कितनी हो जाती है 7,516.6 kilometers. So you people can see we people have pretty vast things. Next, अगर हम देखें, so India is bounded by young fold mountains in the northwest, north and northeast. So जो इंडिया है, इंडिया के पास जो उसका बाउंड्री है वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स हैं वो यंग हैं. सो ये माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाए जाते हैं. और साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ ऑफ अबाउट 22 north latitude it begins the taper and extend towards the Indian Ocean. So we people see, जब हम लोग साउथ वाली जब बात करते हैं तो साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, जब हम 22 नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टेपर एंड इट जो है बाउंड्री जो है वो टेपर है, और वो एक्सटेंड कहाँ तक करती है, वो एक्सटेंड करती है इंडियन ओशन तक, डिवाइडिंग इट इन दी two seas, the Arabian Ocean on the west and the Bay of Bengal on its east. तो हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन है वो दो हिस्सों में बट जाता है, एक जो हिस्सा है वो अरेबियन सी कहलाता है और जो दूसरा हिस्सा है वो बे ऑफ बंगाल कहलाता है.
So you people can write it in your book कि जो लाइन है अगली जब इंडिया की बढ़ती है, तो जब साउथ की तरफ लाइन बढ़ती है तो 22 नॉर्थ लैटिट्यूड की जब हम बात करें यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन है उसको दो हिस्सों में बांट देती है ये वाली लाइन। कौन से दो हिस्सों के अंदर बांट देती है? दैट इज द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन इट्स ईस्ट। तो जो आपका अरेबियन सी है वो कहाँ पे है? वेस्ट में है। और जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पे है? ईस्ट में है। You people can see it in your book. A map is given on page number 3. You people need to see it in your books. Next we people see about this when we people were discussing about कि Indian Ocean है, Bay of Bengal, अभी जो मैं आपको पहला वाला फैक्ट बता रही थी, you people can see it in your books. Please पेज नंबर 3 पे जो आपकी फिगर है 1.3 उसको रेफर कीजिए. You people need to see that. नेक्स्ट वी पीपल सी कि जो फिगर 1.3 में है उसमें हम देख सकते हैं लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड अबाउट is about 30. Despite the fact that east-west extents appear to be smaller than the north-south extent. हम देखते हैं कि जो ईस्ट और वेस्ट है वो छोटा दिखता है हमें नॉर्थ साउथ, जो हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को देखते हैं तो वहाँ पे हमें जो ईस्ट और वेस्ट है वो हमें छोटी दिखती है एरिया जो है इंडिया का, जबकि हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो वो हमें बड़ा दिखता है एरिया देखने में. Okay, so from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. So if we people talk about time lag, तो टाइम लैग की जब हम बात करते हैं तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जब हम देखते हैं, I'll again show it in the book here. You people can see जब हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की, तो यहाँ पे क्या है? टाइम लैग है 2 घंटे का. 2 घंटे का यहाँ पे टाइम लैग है. हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसका लोकेशन क्या है? इसका है 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में इज टेकन एज दी स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. अब जब टाइम लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जो मिर्जापुर है जो कि मिडल में पड़ता है इंडिया के उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम. यहाँ से हम जो है स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, पूरी कंट्री का जो है फिर वो सिमिलर रहता है. सो मिर्जापुर इज द वन जहाँ पे हम लोग टाइम जिससे कि हम उसको डिसाइड करते हैं, तो वो मिर्जापुर इज दी प्लेस. सो जो ये आपका जो टाइम है अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री. तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन का कहाँ से देखा जाता है? वो देखा जाता है मिर्जापुर से. सो जस्ट गोना राइट इट फॉर यू पीपल. टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन time along the standard. I hope आप जब ये चीज़ पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट अगर आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो है चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी. सो दी टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया अब स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो हमने बात की, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो लोकेशन आई जस्ट गिव इट टू यू लेटर. पासिंग थ्रू मिर्जापुर, कहाँ से पास करती है ये? स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारी कंट्री के अंदर मिर्जापुर से पास करती है. पासिंग थ्रू मिर्जापुर. मिर्जापुर कहाँ है हमारी कंट्री के अंदर? यूपी में है. सो यू पीपल नीड टू see these things. Passing through Mirzapur in UP is taken as the standard time for the whole country. Is taken as the, तो जब स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है हमारी कंट्री से जो कि मिर्जापुर है यूपी के अंदर, तो जो टाइम होता है वो जो टाइम है वो सारी कंट्री के लिए वही टाइम जो है वो चुना गया है. यू पीपल कैन पॉज द वीडियो, टेक द नोट्स. So it is taken as the standard time for the whole country. Taken as the
हैंग ऑन, इट इज टेकन एज द, हमने पीछे यहाँ पे अगेन मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिए, यहाँ तक होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया या आप लोगों ने अपने बुक के अंदर मार्क कर लिया, बिकॉज आई एम गोना मूव फॉरवर्ड. सो इट इज टेकन एज द, it is taken as the standard time, as the standard time, as the standard time for the whole country, पूरी कंट्री के लिए. तो क्या है पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम, जो कि स्टैंडर्ड मेरिटियन जब हमारी कंट्री से पास करती है थ्रू मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, तब जो टाइम होता है तब वो पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम माना जाता है, वो टाइम सारी कंट्री के लिए एक ही टाइम माना जाता है. दैट इज द डिसाइडिंग टाइम फॉर द होल कंट्री. सो व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, सो जो हमारी कंट्री में जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट as one moves from south to north. जो हमारी कंट्री के अंदर है लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, यानी कि जो नॉर्थ हमने डिस्कस किया था, तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा, इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट. तो हमारे यहाँ पे डे और नाइट क्या इन्फ्लुएंस करता है, लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज द latitudinal extent influences, क्या इन्फ्लुएंस करती है, इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट में कब, जब कोई मूव कर रहा होता है साउथ टू नॉर्थ, व्हेन वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कब इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जब कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है. सो दिस वाज अबाउट द साइज ऑफ आवर कंट्री. वी पीपल हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, जो भी साइज वाले हिस्से के अंदर हमारी कंट्री के आता है वो हमने सब कुछ यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है. वी पीपल हैव डिस्कस्ड 2 टॉपिक्स. नाउ आई एम जस्ट गोना गिव यू द होल जो हमने डिस्कस किया है, मैं एक बार उसको आप लोगों को पॉइंट्स फैक्ट्स जो है वो दोबारा से दे देती हूँ, बिकॉज इन माई नेक्स्ट क्लास आई एम गोना स्टार्ट विद इंडिया एंड द वर्ल्ड. इन माई नेक्स्ट क्लास आई एम गोना स्टार्ट विद इंडिया एंड द वर्ल्ड एज अ टॉपिक, as and also we people are going to discuss India's neighbor in the next session if I get time. So we people are also gonna discuss that, and with that your chapter will be finished, because we people see कि हमारी जो बुक है उसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के. So people can see कि पूरा का पूरा चैप्टर मुश्किल सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा और आपका लर्निंग वर्क जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इस वजह से. अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लेंथी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिमाग में रखनी है, एंड प्लस यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है. So therefore the chapter is completely facts based. ये है जनरल नॉलेज के फैक्ट्स है. So you people have to learn it. Okay, so I'm just gonna end up my session with discussing what I have discussed with you people. So what all I have discussed with you people is that when we people talk about the location of India, as we people know that India is a very vast country. So India कहाँ पे lie करती है? It lies in the northern hemisphere. नेक्स्ट इट हैज़, अगर हम इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन के बारे में बात करें तो लैटिट्यूड्स अगर हम देखते हैं तो कौन से हैं इसके, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, देन 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. नेक्स्ट इसकी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है, 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट. नेक्स्ट इज 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट.
देन वी पीपल सी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बांट देता है, दो इक्वल हिस्सों में ऑलमोस्ट बांट देता है। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम लोग बात करते हैं तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 23 डिग्रीज देन 30 मिनट्स नॉर्थ। नेक्स्ट वी विल सी, अगर हम अपनी कंट्री के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हिस्से में देखें तो क्या चीजें हैं हमारी कंट्री की, वहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है बे ऑफ बंगाल के अंदर और जो लक्षद्वीप है वो पड़ता है अरेबियन सी के अंदर। नेक्स्ट वी विल सी साइज ऑफ द कंट्री, हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज, अगर हम इंडिया के लैंड मास के बारे में बात करें तो कितना एरिया है इंडिया के लैंड मास का, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम बात करें इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितना है, 2.4%। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हमने वहाँ पे स्टैट्स देखे थे, 7 कंट्रीज थे, 7 लार्जेस्ट जो कंट्रीज है ऑफ द वर्ल्ड, वो सातों की सातों दी हुई थी। उसमें हमने देखा था कि इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है। सो इंडिया इज दी 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। और अगर हम बात करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, जब हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो कितनी है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो कितनी बन जाती है, तब बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पे पीपल सी कि जो टाइम है वो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन। और स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन कैसे इस चीज को निश्चित करता है, बिकॉज जो हमारी कंट्री का टाइम लैग है, फिर पीपल सी फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो वो 2 घंटे का है। तो उसको जो है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, इट इज डिसाइडेड बाय द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि पास करती है मिर्जापुर से, जो कि यूपी के अंदर है। So it is take जो टाइम स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन व्हेन इट पासेस थ्रू मिर्जापुर तब होता है, उस टाइम पे जो टाइम है दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। लास्टली वी पीपल सॉ कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करती है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। कब, जब कोई इंसान चल रहा होता है, जा रहा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तब जो है लैटिट्यूड जो है वो डिसाइड करती है डे एंड नाइट को, वो इन्फ्लुएंस करती है डे एंड नाइट को। सो दिस इज ऑल व्हाट वी पीपल हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन, जिसके अंदर कि हमने लोकेशन और साइज के बारे में हमने डिस्कस किया है इंडिया के। नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन।